Hello friend, welcome back to Savyansi Study Center. I am Pooja and I am come with a conversation between two friends before and after the examination, which helps you. In this conversation you learn something new and effective, and in this show I will understand you with grammar. Without further delay, let's start. Ram, hey Rohit, what's going on? Today you are looking depressed. Hey Rohit, what's going on? Today you are looking depressed. Rohit, hello Ram, nothing is good. That's why I am looking depressed. Hello Ram, nothing is good. That's why I am looking depressed. Ram, hey Rohit, what's going on? क्या चल रहा है? Today you are looking depressed. तुम आज दुखी उदास दिख रहे हो. हेलो राम, नथिंग गुड, कुछ सही नहीं है. दैट्स वाई, यही कारण है कि मैं उदास दिख रहा हूँ. हम डिप्रेस में उदास दिखना. राम, व्हाट हैपन? इफ यू वांट यू कैन शेयर मी. व्हाट हैपन? इफ यू वांट यू कैन शेयर मी. रोहित, नथिंग स्पेशल. You know that today's math exam I didn't practice properly, so that I'm worried about it. Ram, what happened? क्या हुआ? If you want, अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो. You can share me, ये कंडीशनल सेंटेंस है. Nothing special, कुछ विशेष नहीं है. You know that, तुम जानते ही हो कि Today is math exam, आज मैथ एग्जाम है. I didn't practice properly, मैंने अच्छे से उसे प्रैक्टिस नहीं किया है. So that I am worried about it, इस वजह से उसके वजह से मैं चिंतित हूँ. Worried about it मतलब मैथ के एग्जाम के लिए मैं चिंतित हूँ. राम, We got 2 days for practice. Why did not you practice? We got 2 days for practice. Why did not you practice? Rohit, I know that I have been suffering from fever for 2 days. That's why I didn't practice. I know that I have been suffering from fever for 2 days. That's why I didn't practice. We got 2 days for practice. हम लोग 2 दिन पाए थे प्रैक्टिस के लिए. Why did not you practice? तुमने प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? I know that, मैं जानता हूँ. I have suffering from fever for 2 days. मैं 2 दिनों से बीमार था. अगर मैं मंडे से बीमार था तो since Monday. अगर मैं मीन्स जनवरी से बीमार था तो since जनवरी. लेकिन 2 days है तो आपको लगाना है for 2 days. That's why, यही कारण है I didn't practice, जो इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि वो बीमार था. Ram, don't worry about it, because math is a subject which you command the whole year. After that, you get good marks. Don't worry about it, because math is a subject which you command the whole year. After that, you get good marks. Rohit, I know that. Let's see how will be the exam paper. I know that. Let's see how will be the exam paper. डोंट वरी, चिंता मत करो इस बारे में, अबाउट इट, मैथ के एग्ज़ाम के बारे में. बिकॉज मैथ पेपर इज सब्जेक्ट, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच यू कमांड, जिसे आप पूरे साल भर अगर कमांड करेंगे, आफ्टर दैट, इसके बाद ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. मीन्स राम उसे समझा रहा है. रोहित सेड, आई नो दैट, मैं जानता हूँ. लेट्स सी, चलो देखते हैं. हाउ विल बी द एग्ज़ाम पेपर, चलो कैसा एग्ज़ाम पेपर होगा, चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं. राम, ओके, वी विल मीट अगेन आफ्टर द एग्ज़ाम. ओके, वी विल मीट अगेन आफ्टर द एग्ज़ाम. ठीक है, चलो हम लोग अब एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं. ठीक है, ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है. आफ्टर द एग्ज़ाम के बाद. रोहित, हे राम, हाउ वॉज द पेपर. अब रोहित पूछ रहा है, हे राम, हाउ वॉज द पेपर. राम, इट वॉज अ पीस ऑफ केक. आई सॉल्व द होल पेपर. टुडे आई एम सो हैप्पी. एंड व्हाट्स अबाउट यू. It was a piece of cake. I solved the whole
solved the whole paper. Today I am so happy. And what's about you? रोहित पूछता है, हे राम, how was the paper? पेपर कैसा था? राम, it was piece of the cake. piece of the cake एक idiom है. It's too easy बोलने से अच्छा है कि it was easy बोलने से अच्छा है it was a piece of cake. मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, मतलब piece of cake कितना आसान था. I solved the whole paper. मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया. Today I am so happy. आज मैं बहुत खुश हूँ. And what about you? अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा पेपर कैसा रहा. ना piece of cake एक idiom phrase में है. इसका मतलब होता है कोई भी काम जो कि बहुत आसान हो, जैसे कुकिंग इज पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि कुकिंग मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, यानी कि इतने आसान है. रोहित, मी टू, इट वॉज ऑल्सो पीस ऑफ केक फॉर मी. ओके, आई कैच यू लेटर बिकॉज आई एम ऑल इन. मी टू, it was also piece of cake for me. Okay, I catch you later because I am all in. Ram, don't worry. I know that you have not been feeling well for 2 days. Don't worry. I know that you have not been feeling well for 2 days. रोहित बोलता है, me too, मेरा भी. It was also piece of cake for me. मेरे लिए भी ये बहुत आसान था, बहुत चुटकियों से बनने वाला सारा सम्स था. ओके, ठीक है. आई कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. बिकॉज आई एम ऑल इन. ऑल इन मीन्स टायर्ड. ऑल इन मीन्स होता है टायर्ड होना. ऑल इन मीन्स टायर्ड. आई एम टायर्ड मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम ऑल इन, इस तरह का यूज़ कर सकते हैं. ऑल इन एक फ्रेज है जिसे हम आई एम टायर्ड के जगह में आप आई एम ऑल इन बोल सकते हैं. एंड राम, डोंट वरी, चिंता मत करो. आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 days. मैं जानता हूँ कि तुम 2 दिनों से ठीक नहीं हो. रोहित, ओके, बाय बाय. राम, टेक केयर. और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल के टेक केयर बोल करके वहाँ से निकल जाते हैं. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.